فوج نے ایل او سی کے قریب گلمرگ سیکٹر میں 2 پاکستانی ملیٹنٹوں کو پکڑا ہے۔ جی او سی چنار کارپس لیفٹیننٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن نے سری نگر میں اس بات کی جانکاری دی۔ آرمی کنٹونمنٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی او سی نے کہا کہ لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے 2 ملیٹنٹوں کو دراندازی مخالف مہم کے دوران 21 اگست کو پکڑا گیا۔ پکڑے گئے ملیٹنٹوں کا ویڈیو بیان بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈھلن نے گلمرگ سیکٹر میں پاکستانی فوج کی کسی کارروائی اور ملیٹنٹوں کی دراندازی کو مسترد کر دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ لانچ پیڈز ملیٹنٹوں سے بھرے ہیں اور پاکستان ملیٹنٹوں کو کشمیر میں بھیجنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے۔ جی او سی نے کہا کہ ملیٹنٹوں کی دراندازی کے تعلق سے بعض اطلاعات اور افواہوں کے بعد گلمرگ سیکٹر میں 350 آپریشنز لانچ کیے گئے، تاہم ایسا کچھ بھی نہیں پایا گیا۔ میری عمر 36 سال ہوئی ہے اور میں پاکستان راولپنڈی چوک سے آیا ہوں۔ گاؤں ٹیڑا بن ہے اور میں مجاہدین کا کام کرتا ہوں لشکر طیبہ کے ساتھ، اور پھر میں نے ٹرینر ایک ہفتے کی کاچر بن میں کی ہے اور میرے ساتھ مزید اس نے بھی ایک ہی دن کام شروع کیا۔ ہم نے ٹرینر 4-5 سال ہو گئے ہمیں۔ میرا نام محمد نذیر، عمر 20 سال۔ میرے والد صاحب کا نام محمد عارف خان۔ میں پاکستان کے شہر راولپنڈی فیکٹری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک مجاہد ہوں۔ میں لشکر طیبہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے لشکر طیبہ سے ٹریننگ حاصل کی۔ میرے ساتھ مبشر اور خلیل نے بھی کاچر گان میں ٹریننگ کی۔ ہمارا استاد کمانڈر ندیم۔ ہمارا پیچھے والا گروپ ایل سی کے پیچھے تھا۔ ہم نے مل کر حملہ اور گھسپیٹ کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ پاکستان فوج کے نائک آصف، خواجہ زبیر بھی شامل تھے۔ میں اور خلیل پکڑے گئے۔ Pakistan is attempting infiltrations every night. We are encountering infiltrations on the line of control every night. Some of them are getting eliminated, some of them are getting foiled, and they are returning back to the Pakistani army posts from where they were launched. So numbers, I am not a numbers man, but I am telling you they are full and they are wanting to infiltrate in major quantities or major numbers. Now coming to this Gulmarg rumors. Gentlemen and ladies, I have visited Gulmarg sector at least in the last 15 days, I think more than 5-6 times. There are more than 350 operations which have been launched around Gulmarg, including some specific information searches inside Gulmarg town. Otherwise, as you are aware, Gulmarg has been terrorism-free area because of the tourism and other things. But in this last 15-20 days, wherever we got the information, either on speculation or even the rumors which you are also listening, not a single thing has happened in Gulmarg. Whatever is coming in the news, I can confirm to you. I would request any one of you who wants to visit Gulmarg, I will facilitate your move. Please go and stay in Gulmarg wherever you want to visit, whichever place you want to visit. Please report from any place in Gulmarg, and whatever your rumors are, whatever you are hearing, they will absolutely get addressed. وہیں اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر منیر احمد خان نے کہا کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران کئی ملیٹنٹوں نے خود سپردگی کی ہے۔ وادی کشمیر میں ملیٹنسی مخالف آپریشنز میں کمی کے تعلق سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے منیر احمد خان نے کہا کہ آپریشنز جاری ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشنز کی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ اے ڈی جی پی نے وادی میں ملیٹنسی میں اضافے سے انکار کیا۔ And you said it is because of blockade of the cell phones that operations are not being carried out that effectively. It's not true. Maybe the style of anti-militancy operations has changed, and you'll be, at least I am pleased to know and pleased to tell you that we are getting more of the surrenders, and we have got lot many surrenders during this period. And when a local terrorist surrenders, it is, I think, is greater success than getting encounters. So we are working on those lines also, and we are getting good success in that. Nothing to worry on that count that operations are not happening. Operations are happening, and good operations are happening.
इसी दौरान पुलिस ने कहा कि इलाही बाग का नौजवान इसरार अहमद पत्थर लगने से जख्मी हुआ था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मुनीर अहमद खान ने आर्मी कंटोनमेंट श्रीनगर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। महलूक नौजवान के अहले खाना का दावा है कि फायर आर्म से इसरार जख्मी हुआ था। जब इस ताल्लुक से एडीजीपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और पुलिस अपने दावे को साबित करने के लिए अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश करेगी। जीओसी चिनार कोर के केजेएसएन ढिल्लन ने कहा कि वादी में 5 अगस्त से अभी तक 5 जानें जाया हुई हैं और इन हलाकतों के लिए मिलिटेंट और पत्थरबाज जिम्मेदार हैं। No shelling, no pellet injuries. He was hit by a stone. And I am very sure about it. He was injured on 6th of August when there was stone pelleting on 90 feet road. And stone pelleters from Saura, Anjar and other places had assembled, and there was major law and order situation on that day, if you remember. On that day he got injured. Since then he was admitted in SKIMS and he improved a bit, but somehow he's come now. Any such case where a death has occurred or injury has happened, FIR has been registered. So when investigation takes place, everything is taken into consideration, including the medical report. So in this particular case also it will be done. No ambiguity. Family is contending that he was hit by. No, everything. And you also said that he was hit by stone. So Yes. two versions. To back up your version, is police in a process of? Of course, we will investigate the thing and we will get the medical report to substantiate what we are saying. This makes it 5th civilian death in last 30 days. It may be Noor Mohammed Dar, who was the driver, who was hit in the stone pelting and died in Beet Bihara. It may be 2 Gujars, the Kohli brothers, who were killed in the high mountains by the terrorists. Or it may be the shopkeeper, Parampura. And this is the 5th death which has happened because of that terrorist, oblique the stone pelters or the puppets of Pakistan. इस बीच श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं। इलाही बाग श्रीनगर के एक नौजवान इसरार अहमद खान की मौत के बाद शहर में दोबारा पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसरार 6 अगस्त को होने वाली झड़पों में जख्मी हो गया था और तब से वो जेर इलाज था। इसरार के अहले खाना और मकामी अफराद ने दावा किया है कि पुलिस कार्रवाई में इसरार जख्मी हो गया था, ताहम पुलिस ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि पत्थर लगने से नौजवान जख्मी हुआ था। एहतजाज के बीच इसरार अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान डाउनटाउन और दीगर इलाकों इलाही बाग, सौरा, आंचार, 90 फीट रोड, दरगाह हजरतबल, मलबाग और अहमद नगर में कशीदगी देखी गई। अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात को सील कर दिया गया था और इजाफी फोर्सेस तैनात हैं। उधर जिला शोपियां में भी गुज़िश्ता 31 रोज से तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कस्बा शोपियां में अगरचे निजी गाड़ियों की नक्ल हमल देखी गई, ताहम यहां भी सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। शोपियां में अगरचे बंदिशें और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कहीं भी अमल में नहीं लाई गई है, ताहम कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। इसकी वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर रही। वहीं कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में तमाम कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। कस्बे में निजी गाड़ियों की नक्ल हमल जारी रही। जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। हुकूमत की जानिब से अगरचे वादी के बेशतर इलाकों में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया गया है, ताहम पुलवामा में मवासलाती निज़ाम पूरी तरह बंद है। इसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। उधर कस्बा पापुर में आज 31वें रोज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कस्बे में कल लैंडलाइन खदमात बहाल की गई थी, ताहम कई इलाकों में अभी इस सर्विस को बहाल नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या क्या फायदे होंगे। इस इश्तिहार में यह भी जिक्र किया गया है कि दफा 370 हटाने के बाद इलाके में बदलाव आएगा। दर्जा फहरिस्त जात और दर्जा फहरिस्त कबाइल को भी फायदा होगा, वहीं पसमानदा तबका भी इस्तिफादा करेगा। ये भी बताया गया है कि 370 और 35A रियासत की पसमानदगी की वजह थी। इसके हटने से गरीबी का खात्मा होगा और रियासत तरक्की की जानिब गामजन होगी। खवातीन को उनके हुकूक मिलेंगे और POK के रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ होगा।
सरमायाकारी में इजाफा होगा और नई सन्नतें कायम होंगी। इंसदादी दहशतगर्दी के नए कानून के तहत हुकूमत ने जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद, 26/11 हमले के साजिशी जकीउर रहमान लखवी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुलजिम दाऊद इब्राहिम को इनफरादी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। पार्लियामेंट में यूएपीए कानून में तरमीम के तकरीबन 1 महीने बाद हुकूमत ने मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी और दाऊद इब्राहिम को इनफरादी दहशतगर्द करार दिया है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद बिहार के सोपूल में कश्मीरी लड़की से मुबैना मोहब्बत और शादी का दूसरा मामला सामने आया है। सोपूल के राघवपुर थाना इलाके के एटावा गांव के रहने वाले मोहम्मद सुभान के साथ एक कश्मीरी लड़की समीना जान सोपूल आ गई। यहां पर सुभान और समीना ने कोर्ट मैरिज कर ली और अब दोनों कहीं फरार हैं। दरअसल जब सुभान ने अनंतनाग जिला की रहने वाली समीना को राघवपुर लाया, तब सुभान के वालिदैन ने मकामी पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद बिहार पुलिस ने कश्मीरी लड़की को अपनी तहवील में रखा और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी इतला दी गई। ताहम 1 हफ्ते बाद भी जब जम्मू कश्मीर पुलिस राघवपुर नहीं पहुंची तो मकामी पुलिस ने कश्मीरी लड़की को छोड़ दिया। फिर क्या था, सुभान और समीना जान ने कोर्ट मैरिज कर ली और कहीं फरार हो गए। ये मामला सुर्खियों में उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर पुलिस समीना जान की तलाश में राघवपुर पहुंची। जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा कश्मीरी लड़की का वालिद भी है। सुभान और समीना की तलाश की गई, ताहम उनका कहीं पता नहीं चला। समीना के वालिद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बंदिशें लग जाने और मवासलाती निजाम ठप रहने से मामला इल्तिवा में पड़ गया था। वाज़ेह रहे कि एटावा गांव का रहने वाला मोहम्मद सुभान पेशे से मिस्त्री है और वो गुज़िश्ता 5 बरसों से कश्मीर में काम कर रहा था। सुभान पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। 15 दिन के बाद मिल गई जानकारी, तो वहाँ जब ये थाने वाले उनको पकड़ गए तो फिर 8 दिन था इधर थाने में। थाने वालों ने बोला कि आ ले जाओ इसको, तो फिर उधर हालात ख़राब हो गई, सब मोबाइल सब ठप हो गया। तो जो पुलिस वाले वहाँ थाने के वो भी उधर काम पर लग गए। तो अब हम आए आज तो ये बोलता था वो चला गया मद्रास। लड़की कहल के हम नहीं है आपसी जान किए कुर्बान न किए भा जाए, हम सुभान के साथ रहो, हम नहीं जेबे कश्मीर घूर कर। फिर यहाँ पे थाना भी लड़की लग लिया। हाँ, थाना पर जाकर जमा के आए लिए। हाँ, तो एक बात की बोले जमा मतलब थाना पर से लड़की चले ले वापस का के थाना वाला। थाना वापस नहीं लागले तब एक बात की बोले जब लावली तो कोर्ट के लिए, हाँ शादी ब्याह के लिए, निकाह के लिए। हाँ, तो के बाद तकर बाद मियाँ बीवी भेले चल गेले बाहर। फिर चल गेली कम बैला। हाँ, चल गेले कम बैला। कदा गेले से जाने क्या ना से नहीं। लड़की ने भागा कर। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है समीना जान। तो क्या हुआ फिर? डॉक्टर अब्दुल रशीद भिंडी का है, वो भिंडी जाला गाँव का। तो अभी मिला नहीं है उधर, वो बोलते हैं वो गया उधर मद्रास, उधर ढूंढा है। आप लोग छापामारी किए हैं हर जगह उस गाँव जाके? हाँ, 2-3 जगहों पर छापामारी की है, वो तो मिला नहीं है। फिर अब आगे क्या करना है? हाँ, आगे क्या करना है? देखेंगे, जो अफसर देंगे हुक्म बख्शेंगे वही करेंगे। जम्मू कश्मीर के कौन से थाना से आए हैं आप लोग? अच्छा बल डिस्ट्रिक्ट जिला। बारामूला सोपोर में वाक़या एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के बंद रहने से मेवा सनत से वाबस्ता अफराद शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मौजूदा हालात की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए ट्रक ड्राइवर्स भी सोपोर में फंस कर रह गए हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए बाज ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों से वो दरमांदा है और अब उनके पास पैसे भी नहीं है। जरूरी अशिया न होने से भी वो परेशान हैं। उन्होंने जल्द से जल्द फ्रूट मंडी खोलने की अपील की ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। इनका कहना है कि मवासलाती निजाम बंद रहने से भी इनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। वो अपने घर वालों से राबिता करना चाहते हैं। वो इतना हालात बुरा हो गए कि यहाँ से वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, डीजल नहीं है यहाँ पे, तो सर माल मिल नहीं रहा, बुरे हाल है यहाँ पे। और इससे बढ़िया मतलब कि अगर आपने ये सब करना है तो कम से कम
जो सब यहाँ पे पब्लिक है उन्हें परेशान तो ना करो। बहुत तकलीफ है। अभी 10 दिन से घर वाले इंतजार कर रहे, कॉल आया नहीं, कॉल के लिए घर वाले देख रहे कि अभी कॉल आएगा, अभी कॉल इधर पूछा, इधर कहीं कॉल करने के लिए कुछ है नहीं, खाने के लिए इधर सुबह से ढूंढ रहे, कोई दुकान खुला है नहीं, फिर क्या करे, पानी है नहीं, बहुत परेशान है। मंडी बंद है, खाने का कुछ नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं यार, नहाने का नहीं, धोने का नहीं, कुछ नहीं, बैंक बंद, पैसे पास में है नहीं, राशन लाया हो खत्म हो गया, अब क्या करें। हाँ मंडी का इंतजार कर रहे हैं, बाद में हमारा इधर लाख रुपए का हफ्ता है, गाड़ियां खड़ी है, पैसे कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ किस्त भरेंगे। रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल से यहाँ के मुख्तलिफ शोबों पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। जिला शोपियां में तारीखी मुगल रोड पर वाक़ सयाहती मकामात को भी अगरचे हुकूमत ने सयाहती नक्शे पर लाने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला शोपियां में भी ये सयाहती प्रोजेक्ट मुतासिर हुआ है। मौजूदा हालात से तारीखी मुगल रोड पर इस शोबे से मुंसलिक अफराद का रोजगार भी मुतासिर हुआ है। जिला रामबन में गुज़िश्ता एक माह से फोन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से आम लोगों, दुकानदारों, व्यापारों, तलबा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने दावा किया कि अगरचे पुलिस और इंतजामिया ने जिला को अमन पसंद और भाईचारा कायम रखने वाला जिला करार दिया, लेकिन इसके बावजूद जिला में ये खिदमात बंद है। लोगों ने इंतजामिया, खासकर जिला इंतजामिया से इस ज़िम्न में इक़दामात उठाने की मांग की है। मैं कहूँगा कि आप ये अपनी उसातत से इसको आप ज़रा एक बार फिर एडवाइज़र साहिबान जो है उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाएं कि ये जो है ये मोबाइल सर्विस जो है ये जितने भी यहाँ की जो भी कंपनीज़ हैं, जैसे आइडिया है, वोडाफोन है, जियो वगैरह, एयरटेल है, इनको रेस्टोर किया जाए ताकि लोग जो है वो अपना काम धाम चला सकें। हम गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं, हमने डीसी रामबन से भी अपील की थी, एसएसपी रामबन से भी अपील की थी, डीआईजी साहब उस दिन दौरे हमारे बीच में आए, हमने उनसे भी अपील की थी कि फ़ोनों के बारे में देखें, रामबन का फ़ोन को रिलीज़ कर दें। उधर लतपुरा पांपुर में ट्रक ड्राइवरों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमे के अफसरान इनकी ट्रकों से चावल उतारने में जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई गाड़ियां 10 से 15 दिनों से एफसीआई के बाहर खड़ी हैं। उन्होंने महकमे से इन गाड़ियों को जल्द अनलोड कराने की अपील की है। इधर तो सर बहुत परेशानी है। पहले नंबर तो कोई सब्जी, दाल, रोटी कुछ भी बाहर से मिल नहीं रहा, दुकानें बंद है सारी, और अब तक 15-15 दिन हो जाते हैं, अभी गाड़ी खाली नहीं होती है। नुकसान सर ऐसे हमारा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। हम चक्कर के हमारे को पेमेंट मिलती है 2 या 3 हज़ार रुपया मिलता है, हमारा चक्कर नहीं लगेगा तो हमारा ऐसा मिलने में हमारा घर का सर्कल भी नहीं चलता। कश्मीरी हमारे को कोई तंग नहीं करता, हमारे को राशन तक देते हैं खाने के लिए, हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, प्यार से हमको सब कुछ देते हैं, खाने बाने के लिए भी हमारे को दे रहे हैं, कोई हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है गाड़ी हमारी नंबर से खाली नहीं होती है। वादी में मौजूदा नामसाइद हालात के चलते बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगल स्मगलर्स सब सोने को 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के मुख्तलिफ कंपार्टमेंटों में जंगल स्मगलर मौजूदा हालात का फायदा उठाकर सरसब्ज दरख्त काट रहे हैं। बिल्लीपुरा इलाके से मिली इतला के मुताबिक इलाके में जंगल स्मगलरों ने महकमे जंगलात के एहलकारों पर भी हमला किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डीएफओ बांडीपुरा का कहना था कि कुछ इलाकों से शिकायत मिलने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराए हैं। जंगल स्मगलिंग को रोकने के लिए फॉरेस्ट कंट्रोल रूम की टीमों को मुतहरिक किया गया है। पिछले मुलाजमों पे मतलब फॉरेस्ट स्मगलरों ने हमला किया था, तो वहाँ बे मौके पे सीजर भी किया और मुलजिमों को गिरफ्तार भी करवाया और एफआईआर भी काटा उसमें। तामहाल ड्यूरिंग दिस अनरेस्ट में बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन में हालात मामूल पे रहे और मुलाजिम बड़े चौकस हैं, किसी किस्म का नुकसान का भी उतना अंदेशा नहीं है। हाँ, आपने जो आपके माध्यम से जो ये हमें भी मिला, तो वहाँ हम गए थे तो हमने वहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज करवाया। इस बीच नामसाइद हालात के दौरान पुलवामा में नाजायज तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। इसके तहत श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर खड़े किए गए नाजायज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इंतजामिया का कहना है कि कस्बा पुलवामा समेत जिला के सभी इलाकों में नाजायज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी मुहिम जारी रहेगी।
स्पॉट हमें पाए कि कुछ इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी गोंगो इलाके में, तो ऑन स्पॉट हमने वो डिमोलिश किया है साहब। दूसरी जो एनक्रोचमेंट से इन अनरेस्ट टाइम में हम उसके साथ लगे हुए हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। टोटल जो हमारा टीम है वो उस पर देख कर चले, जो पूरे इलाके में अपना गश्त। सांबा पुलिस ने जिला के घगवाल नौतात इलाके में पैदाइश से कबल बच्चों की जिन्स का पता चलाने वाले ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ा है। ये ग्रुप एक किराए के मकान में ये काम अंजाम दे रहा था। पुलिस ने अल्ट्रासाउंड मशीन समेत दीगर तिब्बी आलात व दवाएं भी जब्त की हैं। पुलिस ने एक शख्स और 7 खवातीन को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सांबा शक्ति पाठक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक पंजाब से है और वो सांबा में पैदाइश से कबल बच्चों की जिन्स का पता चलाने का रैकेट चला रहे थे। ये औरतें लेडीज़ जो टेस्ट के लिए आई थी वो, प्लस रंजीत जिसने वो बिल्डिंग किराए पर ली हुई है, और वो उसकी मिसेस जो कि नर्सिंग का को जानती है काम, ये हमने आज पकड़े हुए हैं। कि पिछले 15-20 दिनों से ये घर इन्होंने लिया हुआ था, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इन 15-20 दिनों से तो ये काम चल ही रहा था। अभी देखते हैं आगे। एफआईआर रजिस्टर होगी? ऑफ कोर्स रजिस्टर होगी। बाकी उनकी गाड़ी से कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, कुछ सुनने में आया, कुछ वेपन वगैरह भी मिले हैं। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात में मुहर्रम की मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। इंतजामिया का कहना है कि जुलूसों के पुरअमन इनाकाद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम सूरत हाल को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले बरसों की तरह इस साल भी आशूरा का रिवायती जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिलेगी। देखिए सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मुहर्रम की मजालिस और दीगर तकारीब का सिलसिला जारी है। बारामूला, बडगाम और श्रीनगर के कई इलाकों में शिया तबके के लोगों की अक्सरियत है। मुहर्रम की मुनासबत से इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए जा रहे हैं। इमाम बारगाहों के आसपास सफाई के साथ साथ पानी, बिजली की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। श्रीनगर के जड़ीबल, हसनाबाद, डलगेर, आबी गुजर और गुरु बाजार के इलाकों में दरकार जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। शिया ब्रदरी के लोग हैं, उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे हमने इंटरेक्शन की थी। फिर एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो इमाम बाड़ा के हेड्स हैं उनके साथ हमने की कि जहाँ जहाँ अलग जगह पे मजलिस होनी है या प्रोसेशन होना है, तो दोनों को डिस्कस किया गया। सबसे पहले तो मैं बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं उनके लिए रोड की कंडीशन इंप्रूवमेंट जहाँ जहाँ करने की ज़रूरत थी, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई या इंटरनल जहाँ पे असिस्टेंस करने की ज़रूरत थी, वो उनसे डिस्कस करके फाइन ट्यून किया गया। वादी में कई बड़े लीडर इन दिनों नजरबंद या हिरासत में लिए गए हैं। ऐसे में शिया एसोसिएशन ने पुराने शहर का जुलझना जुलूस न निकालने का फैसला किया है। ताहम घरों में मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। हालात की क्या बात, इसमें हालात की नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो यहाँ पे मेन प्रोसेशन जो आज आशुरा का निकलने वाला था शिया एसोसिएशन की जानिब से, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम कोई भी प्रोसेशन नहीं निकालेंगे एज ए प्रोटेस्ट। तो जो छोटे छोटे जुलूस भी हैं, और मुझे लगता है कि जो मोहल्लों में छोटे छोटे वो जुलूस भी निकलते हैं, उन पर भी कदगन लगाई गई है, उन्हें भी इजाज़त नहीं है निकलने की। हाँ, मजालिस तो होती हैं घरों में, इमाम बारगाहों में होती हैं, लेकिन वहाँ भी क्या नाम है इसका लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं होता है। इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में चंद जगहों पर ही जुलूसों की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसी श्रीनगर ने कहा कि 8 और 10 मुहर्रम को निकलने वाले जुलूसों की इजाजत के ताल्लुक से अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जो प्रोसेशन का जैसे आप को मालूम है कि हर साल होता है, तो प्योरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ डिस्कस किया गया और उनके कंसेंसस के साथ डिसाइड किया गया कि कहाँ पे प्रोसेशन किस टाइम के दौरान रहेगा और कहाँ पे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मजलिसें जो जहाँ हर जगह हो रही हैं वहाँ सिक्योरिटी और जो बेसिक असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि 8 और 10 तारीख का अभी रिव्यू किया जाएगा, बट एक बेहतरीन चीज़ ये है कि कम्युनिटी की तरफ से भी काफ़ी कंसेंसस रहा है कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट उस किस्म का ना हो जाए कि कहीं ऐसे प्रोसेशन के दौरान। और कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी एक पॉजिटिव फीडबैक भी रही है और उनको कंसेंसस में लेके उनको ऑन बोर्ड लेके वो डिसाइड किया जाएगा उसके बारे में। शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से जहां दोनों फिरकों को मुहर्रम के इन मुकद्दस अयाम में भाईचारा बनाए रखने की तलकीन की जा रही है, वहीं अगर सरकार की बात करिए तो सरकार का कहना है कि
इन अयाम के लिए शिया डोमिनेटेड एरियाज़ में हर मुमकिन सहूलियात बहम रखी गई है। ताहम 8 और 10 मुहर्रम के जुलजना के जुलूसों पे इस बार भी क्या पाबंदी रहेगी या निकालने की इजाज़त दी जाएगी, उस पर हतमी फैसला लेना अभी बाकी है। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं मुल्क भर के साथ साथ खित्ता लद्दाख में भी इन दिनों मुहर्रम के चलते शहदाई करबला की याद में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। लेह में मुहर्रम की मजालिस मुनाकिद की जा रही हैं। बाजारों में जगह जगह सियाह परचम और मुहर्रम के बैनर नजर आ रहे हैं। दुकानों पर भी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जरूरी लिबास और दीगर अशिया दस्तियाब रखी गई हैं। खुसूसी मजालिस में शहदाई करबला की कुर्बानियों के तज़किरे किए जा रहे हैं और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बूढ़ तबके के लोग भी इस दौरान अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। यहाँ इन दिनों हुसैनी लंगरों का एहतमाम किया जाता है, जहाँ बिला लिहाज मजहब मिल्लत लोग खाना खाते हैं। शहर के अलावा छूछूत, ठकसे, शिये और फियांग इलाकों में जगह जगह बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हमारे नौजवान जो है जोश व खरोश के साथ यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हमारा जो है उम्मीद है कि मुहर्रम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। मुहर्रम के इमाम हुसैन की इस पे है कि उस पर हम ये कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन की राह पे चलोगे तो फिर यहाँ पे हर चीज़ के लिए वो है, इसीलिए हम इमाम हुसैन की। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बस हम जो भी है इमाम हुसैन की राह पे चलना चाहिए, उनके हिसाब से हमें इसकी दीन के हिसाब से सारा कुछ चलना चाहिए। उधर बांडीपुरा जिला में मुहर्रम के लिए मुकर्रर किए गए नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी का कहना है कि शिया आबादी वाले इलाकों में मुख्तलिफ तकारीब अहसन तरीके से जारी हैं। सुंबल सुनावारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर इफ्तिखार का कहना था कि मुहर्रम के हवाले से मुनाकिदा मुख्तलिफ जायजा मीटिंगों से तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करने में काफ़ी मदद मिली। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर बांडीपुरा मिस्टर शाहबाज साहब, SSP साहब और हम लोगों ने मिलके सब अफसरान के साथ और लोगों के साथ मीटिंग ले ली थी और जो वहाँ पे डिसाइड हुआ, जो मिनट्स वहाँ पे निकले, कहाँ पे क्या काम करना है मुख्तलिफ इमाम बाड़ों में, मुख्तलिफ शिया डोमिनेटेड एरिया में, उसी के हवाले से आज हमने दौरा किया और मेरे साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज अफसरान मेरे साथ ही थे और जो फैसिलिटीज़ हमने रखनी थी उस पर हमने जायज़ा लिया और काम चल रहा है और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये मुहर्रम अंजाम तक पाएगा। वादी के तारीखी इमाम बारगाहों में इमाम बाड़ा अहमदपुरा को खास अहमियत हासिल है। ये इमाम बाड़ा कदीम दौर के फन तामीर का एक शाहकार नमूना है। यहाँ मुहर्रम के अयाम और साल में कई बार मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। पेश है मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में इमाम बारगाहों को तारीखी हैसियत हासिल है, जिनमें इमाम बाड़ा अहमदपुरा मागाम की खास अहमियत है। अहमदपुरा के इस तारीखी इमाम बाड़े में बैक वक्त 10,000 से जायद लोगों की गुंजाइश है। इस इमाम बाड़े की दीवार संग देवर की हैं, जिन पर कदीम दौर के संग तराशों ने अपनी हुनरमंदी का भरपूर मुजाहरा किया है। इमाम बाड़े के 56 सुतून पत्थरों के हैं और मेहराब नहायत ही खूबसूरत है। इमाम बाड़े की बुनियाद 16 बड़े लकड़ी के सुतूनों पर है। बीच में एक खूबसूरत गुंबद है जिस पर अहले बैत के अस्माए मुबारक सुनहरे हरूफ में लिखे हुए हैं। इमाम बाड़े में कुरान मजीद का एक कदीम नुस्खा भी है, जिसकी खासियत यह है कि इसकी हर सतर अलिफ से शुरू होती है। इस कुरान मजीद के इब्तिदाई दौर और आखिरी सफ़ात पर खुलफाए राशिदीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मकतूब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम मुक़व्विस गवर्नर मिस्र और बहरैन के गवर्नर मुंज़िर बिन सावी के नाम कुछ कलमी नुस्खों के तबर्रुकात मौजूद हैं। तारीखी एक हैसियत है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आयाम मुहर्रम में काफ़ी जुलूस आते हैं। तारीखी हैसियत इसलिए भी रखता है क्योंकि इसकी जो साख्त है, इसकी बनावट जो है, उसमें कारीगरों ने अपने फ़न का कमाल दिखाया है और ये कश्मीर में एक मशहूर इमाम बाड़ा है।
इसके साथ कदीम दौर की काफ़ी वाबस्तगी है, क्योंकि यहाँ अहमदपुरा में एक तालीमी मरकज़ रहा है। उस वक्त से यहाँ तालीम हासिल करते थे और वो मुसन्निफीन जो मरसिया लिखते थे इसी इमामबाड़े में वो तालीम हासिल करते थे। इसकी इंजीनियरिंग हैरान कुन है। मैं भी जवान हूँ, मैं जब इसकी इंजीनियरिंग देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये पत्थर से बना और लकड़ियों से बना हुआ है। ये एक एसेट है हमारे लिए, हमारे दरमियान एक सरमाया है। एक सरमाया और भी है, वो है कुरान शरीफ, जो तकरीबन 14 साल का पुराना कुरान शरीफ है। 10 सितंबर 1952 में कश्मीर के जय्यद आलिम मौलवी मोहम्मद जवाद अंसारी ने इस इमाम बाड़े का संग बुनियाद रखा। उनके इंतकाल के बाद मौलवी इफ्तिखार अंसारी ने इसकी तामीर को पाए तकमील तक पहुंचाया। जो कश्मीर में इसकी तारीखी अहमियत अहमदपुरा की ये है कि यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी थी जिनमें से बहुत से मुसन्निफ गुजरे हैं। जम्मू कश्मीर में जो 4 बड़े इमाम बाड़े तामीर की है, इनमें से शाहकार ये जो इमाम बाड़ा अहमदपुरा है, इसमें एक तारीखी अहमियत हासिल है। ये पुराने ज़माने का एक शाहकार नमूना है। पुराने दौर से ही अहमदपुरा इमाम बाड़ा को तारीखी एतबार से मरकजी हैसियत हासिल है। यहाँ साल भर मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं, जिनमें लाखों की तादाद में अज़ादार शिरकत करने के लिए आते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप के तहत मुंतखब क्रिकेट खिलाड़ियों को जम्मू तलब किया है। सीनियर ग्रुप के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बड़ौदा रवाना किया जाएगा। वादी के मौजूदा हालात के तनाजुर में एसोसिएशन ने ये पहल की है। इस मौके पर खिलाड़ियों और JKCA अहदेदारों ने न्यूज़ 18 उर्दू के रोल की सताइश की और कहा कि मवासलाती निज़ाम ठप रहने के दौरान न्यूज़ 18 इतलात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। 18 की वजह से हमको पता चला कि यहाँ पे ये कैंप हो रहा है। हमको पता नहीं चला कि कहाँ कब पहुँचना है। तो जैसे ही न्यूज़ 18 की वजह से हमको पता एडवर्टाइज उन्होंने किया, हमको पता चला कि हमको मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट करना है जम्मू में, और ऑलमोस्ट लगभग सब पहुँच गए हैं और कोई है वो भी पहुँचेगा। ये हमारा क्रिकेट की ट्रायल्स चल रही थी, तो जैसे कि हालात ख़राब थे कश्मीर में, तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अंडर 19 का है, तो अब हमें जम्मू बुलाया गया। कम्युनिकेशन सब बंद है, तो अब हम जम्मू आए हैं। तो यहाँ पे अब ट्रायल्स देनी है, फिर टीम निकलेगी, फिर हमें बाहर खेलने जाना है। जो अंडर 19, अंडर 16, अंडर दिस रणजी ट्रॉफी के लड़के जो है कांटेक्ट होके उनको अब यहाँ पे जम्मू में जो है एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, और दे विल बी प्रोसीडिंग फॉर बड़ौदा, दे विल बी लिविंग टुमारो। तो बाकी बच्चे जो है जो यहाँ पे अंडर 19, अंडर 16 के बच्चे हैं, उनका कैंप होगा वहाँ पे KC स्पोर्ट्स क्लब में। और सारे बच्चे अभी जम्मू से भी और कश्मीर से भी सारे बच्चे अभी यहाँ पे है। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन ने एजुकेशनल टूर से वापस हुए शुमाली कश्मीर के तलबा का खैर मकदम किया। तलबा ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का मुतालाती दौरा किया। इस मौके पर तलबा ने इन्हें मौका फराहम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। अपने फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इंडस्ट्रियल कॉम एजुकेशनल टूर का आयोजन किया, जिससे कि हम सारे स्टूडेंट को हमारे देश के इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला, और साथ ही हमारे देश के कुछ इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज से भी मिलने का मौका मिला। It's an experience for the students of far-flung areas of Kupwara and Northern Kashmir to visit these areas, visit these places and understand how the nation is developing, how the children are getting educated in technical domains, in industrial domains, and how the social sector and the economic sector is progressing in our country. I'm sure you would have got tremendous experience and you would have come back with a lot of things which you would like to see even come up in Kashmir. And in the days to come, all these benefits of what you have seen across the country are going to be here, and you as the future generation of the country, future generation of Kashmir, would be the beneficiaries of everything which you have seen there. बीजेपी की जानिब से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कांग्रेस, PDP और दीगर कई जमातों के दर्जनों लीडरों और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे।
नीति आयोग के ताज़ा मालियाती शमूलियत व फरोग हुनरमंदी प्रोग्राम में बारामूला को आला दर्जा हासिल हुआ है और इसके लिए जिला को खुसूसी तौर पर 3 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इस रैंकिंग में इत्मीनान का इजहार करते हुए डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने सच्ची लगन और मुस्तकिल मिजाजी से काम करने पर अफसरों को मुबारकबाद पेश की। डीसी ने TADP के तहत निशानदेही किए गए मुख्तलिफ शोबों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। डीसी ने तमाम जेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुआयना वक्त पर मुकम्मल करने की हुकाम को हिदायत दी। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने चेस और कैरम टूर्नामेंट के जिम्न में सरपंचों की एक मीटिंग मुनाकिद की। पंचायती सतह पर 6 सितंबर से टूर्नामेंट मुनाकिद होगा। इस मौके पर डीसी ने खेलकूद सरगर्मियों की अहमियत को उजागर किया और तमाम सरपंचों से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उधर धोबीवन कुंजर के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में महकमे पुलिस का 3 रोजा बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स ट्रेनर्स प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में मास्टर ट्रेनर बनने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, SDRF और आर्म्ड पुलिस की विंगों को तरबियत दी गई। प्रोग्राम के जरिए मास्टर ट्रेनरों की एक बड़ी जमात तैयार की गई। तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने किया था। लेह के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया गया। LAHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वांगियाल और लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट नामगियाल ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। मकामी अफराद के अलावा गैर मुल्की सयाहों ने भी आर्ट गैलरी का मुशाहिदा किया। एडवांस्ड लेप्रोसिक सर्जरी के मौजू पर लेह में 2 रोजा सेमिनार मुनाकिद किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों ने इसमें शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल जलील वानी ने करगिल जिला की नुमाइंदगी की। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बेरोजगारों को कारोबार के लिए कर्ज देने के लिए इंटरवेज मुनाकिद किए गए। बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों और खवातीन ने इसमें शिरकत की। हुकाम के मुताबिक कर्ज देने के लिए 20 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। जिला रामबन की पंचायत एधुआ से लोगों का एक वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से सड़क राबिते के सिलसिले में मुलाकात हुआ। लोगों का कहना है कि सड़क राबिते पर शुरू होने के दूसरे दिन ही ये काम नामालूम वजूहात पर बंद कर दिया गया। वो आजादी के बाद पहली मरतबा सड़क राबिते की तामीर से काफी खुश थे, लेकिन सड़क की तामीर का सिलसिला एक बार फिर से बंद होने से इलाके के लोग नाला हैं। अवाम ने महकमे देही तरक्यात व पंचायत की जानिब से मुख्तलिफ मरकजी और दीगर स्कीमों के तहत अंजाम दिए गए तामीराती कामों के बकाया जात 5 साल से वाजिबुल अदा रकूमात की वागुजारी के मसाइल भी उजागर किए। ट्रामा अस्पताल पट्टन में एक्सरे और USG की मशीनें बेकार पड़ी हैं। पट्टन में करोड़ों रुपए की लागत से ये मशीनें नस्ब की गई हैं, लेकिन इन मशीनों को चलाने और मरीजों का टेस्ट करने के लिए कोई माहिर तैनात ही नहीं है। मरीजों का कहना है कि इन्हें अस्पताल में टेस्ट न होने से काफी मुश्किलात का सामना है। मरीजों ने मुतालबा किया है कि पट्टन के ट्रामा अस्पताल में पूरे अमले को तैनात किया जाए। प्रॉब्लम फेस करान तो वारिया लट योर ये मशीन करान कम कह फॉल्ट तो क्या कर पे पे बाजार ग तती पे कर दपान कि अगर यूत बुढ़ हस्पताल गोस कम से कम ये फैसिलिटी एक्सरे सारे को लकुट टेस्ट मान अत गोस कम से कम ये फैसिलिटी ये वहाँ पे ये है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, CMOs हैं, BMOs हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो टेक केयर कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा मुझे नहीं आया, सब हर जगह से फंक्शनिंग का आ रहा है रिपोर्टिंग। अब क्या प्रॉब्लम है मुझे आई एम नॉट हैविंग रियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक है कि टेलीफोन वगैरह नहीं है। तो मेन वही मैं कह रही हूँ, एम्बुलेंस जो है इट हैज़ बिन द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहें या स्टाफ लाना ले जाने। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आई हैव टू सी कि क्यों नहीं।